ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಆಗೈತೆ ಅಷ್ಟು ಕಬ್ಬು ಚಲೋ ಬರ್ತಿದೆ. ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಚಲೋ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಕ್ಯಾ ಬೋಲ್ತ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡೋದು ಭಾಳ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಖತ ಭಾಳ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದು ಮಾಡಿ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಖತ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. 10 to 15 ಟನ್ 20 ಟನ್ ಪರ್ ಏಕರ್ ತನಕ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಮುಂದೆ ವರ್ಮಿ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಇದೆ. ಗ್ರೀನ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಭಾಳ ಚಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಿಂಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಿಂಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಚಂದ ಅಂತ ಸಾಯಿಲ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಚಲೋ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸಾಯಿಲ್ ಭೀ ಚಲೋ ಇದೆ. ಕಬ್ಬಿನ ಸಲುವಾಗಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದ್ರಾಗ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅದರ ನಂತರ ಕಬ್ಬದ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಇರ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಭಾಳ ಧ್ಯಾನ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಮದಿದೆ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಿನಿಮಮ್ 4.5 ಫೀಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಇಡ್ತೇವೆ. 5 ಫೀಟ್ನೂ ಇರ್ತೈತಿ. ಡೀಪ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇದ್ರೆ 6 ಫೀಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. 4.5 ಮತ್ತು 5 ಫೀಟ್ದಾಗ ಅರ್ಧಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರಿಂದ ಭಾಳ ಚೆಂದಂಗೆ ಅರ್ಧಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕುಬುಟೋ ಅಂತರ ಇದೇನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ 6 ಫೀಟಿಂದ ಇದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಮುಂದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಜೂನ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಅಡಸಾಲಿ no flowering variety means they will start with the June July. Okay. Especially 517. More people are planting in June. Yeah. June July. Actually July if it is planted in June, that variety it is popular. 517. It is very much popular here. That variety if it is early before June means it will flowering sir. Right. So that's what third week of July they will prefer. After 15th of July, we have to plant. 15th of July. Right. Or that month end, please. Sir, is Sanjeev Mane from Maharashtra. You are from Maharashtra? Yeah, I am from Maharashtra, Sangli district. Oh. Sir, please. Sir is our Vice President. Prabhakar. Nice to meet. All of a sudden it has fixed, sir. After that I remembered. I spent enough time on agriculture activities. Very nice. I am thorough with the subject. I get connected. Actually, I am a farmer. I am not an agriculture graduate or something else. ನನ್ನ ಕಬ್ಬು ಮಾಡೋ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಭೂಮಿದಾಗ ಕಬ್ಬು ಮಾಡೋದ್ನಾಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಈಲ್ಡ್ ಬರಬೇಕು ಈ ಥರ ನನ್ನ ಕಡೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆ ಥರ ಭಾಳ ಚಂದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. 1998ದಾಗ 100 ಟನ್ ಅವರೇಜ್ ನನ್ನ ಕಡೆ Hindi मालूम है. Hindi even you speak freely. No issue. हिंदी में तो बहुत ही अच्छा मुझे आता है. कन्नड़ इतनी अच्छी नहीं आती है मुझे. I am well versed with Hindi. तो 100 टन का हमारे यहाँ 1998 में मैंने फर्स्ट टाइम किया था. वो तो भी सक्सेसफुल हुआ. 5 एकड़ में था. तब से आज तक कम से कम 100 टन का उत्पादन मेरे यहाँ आता ही है. अच्छा. मेरे बहुत सारे साथी हैं उनके यहाँ पे 100 टन 125 टन का भी एक्सपेरिमेंट हमने किया था. वो भी सक्सेसफुल है. इसमें सेंट्रल शुगर के रिसर्च सेंटर हमारे महाराष्ट्र में सातारा डिस्ट्रिक्ट में है. वहाँ के बहुत सारे साइंटिस्ट हमको गाइड करते थे भी और अभी भी करते हैं. वसंत यादव शुगर इंस्टीट्यूट EVSI तो आपको पता ही है पूना में है. वहाँ के साइंटिस्ट भी उसमें हमको मार्गदर्शन करते हैं. कृषि विद्यापीठ से भी बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं. हमारे कृषि विद्यापीठ से रिटायर हुए साइंटिस्ट बहुत सारे कोल्हापुर सांगली डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं. वो हमारा एक ग्रुप बन गए. उसको वो सब लोग गाइड करते हैं. तो 2007 में हमने 125 टन का उत्पादन लेने के लिए टारगेट रखकर काम किया. सब साइंटिस्ट लोगों ने गाइडेंस किया तो उसमें भी हमको सक्सेसफुल हो गया. 127 तक कई फार्मर हमारे यहाँ पहुँच गए. 2010 में और एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि 150 टन गन्ना आना चाहिए. ऐसा एक्सपेरिमेंट किया. सॉइल साइंटिस्ट डॉक्टर मराठी सर करके हैं. एग्रोनॉमिस्ट डॉक्टर BP पाटिल करके है जो कोल्हापुर में रहते हैं. और एक डॉक्टर बालकृष्ण जमदग्नि सर करके है. He is a physiologist and
बहुत अच्छे काम करते हैं वो। ये सब ऐसे साइंटिस्ट इसमें शामिल हो गए और 150 टन का टारगेट रखकर काम किया। 121 से लेकर 148 टन तक हमको अलग अलग जगह एवरेज मिला। हाईएस्ट वाज 148 इनको मिला था उस टाइम पे। मेरे साथ बैठे हैं वो अशोक खोद करके है। उसके बाद 4-5 साल तो ऐसे ही चला रहा कि हर एक फार्मर हमारे यहाँ सोचता रहा 125 टन आता कैसे आता है, करेंगे चलो आप भी करते हैं, 150 टन का ट्राई करते हैं। ऐसे करते करते बहुत सारे फार्मर उसमें अच्छे निकल आए। उसके बाद 2017-18 में हमने सब साइंटिस्ट लोगों से बातचीत करके मीटिंग रख के और आगे का टारगेट ज़्यादा रख कर के क्या कर सकते हैं, ऐसे हमने शुरुआत किया। उसमें ऐसा तय हुआ कि एक्चुअली जब हम फील्ड इसके ऊपर काम करते हैं, साइंटिस्ट लोग काम करते हैं, तो 300 से ज़्यादा टन उत्पादन आने की क्षमता गन्ने में है, शुगर केन में है। हम तो टारगेट वैसे थोड़ा कम रखेंगे, उन्होंने बोला कि 200 टन रखकर काम करेंगे, 200 टन पर एकड़ का। अभी थोड़ा सा शुरुआत में अचरज भी लगा और इतना हो नहीं सकेगा, कैसे होगा। 150 टन निकलना भी बहुत, वैसे देखा जाए तो इतना आसान नहीं है। उन्होंने बोला कि हम ट्राई तो करेंगे। ऐसे करके हमने 2017-18 में ट्राई किए। वो 1 एकड़ के ऊपर सब हमने फॉगर सिस्टम भी बिठाई थी। इरिगेशन के लिए ड्रिप इरिगेशन था। ऊपर से हमने ऐसे सोचा था कि टेम्परेचर थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकेंगे, मॉइस्चर भी थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकेंगे, और फॉगर सिस्टम में से थोड़े बहुत दवाइयाँ स्प्रे करेंगे या ग्रोथ हार्मोन्स भी उसमें से स्प्रे कर सकते हैं। ऐसे करके वो भी हमने किया था। खर्चा बहुत ज़्यादा हुआ था, वो बात अलग है। वो थोड़ा सा ट्राई करना है, इसके लिए हमने वो किया था। बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें शामिल हुए। बाद में डेक्कन शुगर टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन है पुणे में, DSTA बोलते हैं, उसमें मैं भी 11 साल से मेंबर तो बहुत सालों से हूँ, लेकिन डायरेक्टर बॉडी में भी मैं हूँ। वहाँ के भी बहुत सारे साइंटिस्ट हमको गाइड करने लगे कि चलो एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, देखेंगे कितना आता है करके। ऐसे करके जब हुआ तो 167 टन 677 kg इतना यील्ड मिला। ये एक्चुअली फैक्ट्री का ये है, जो स्लिप आती है वो वज़न है। तो वो वैसे देखा जाए तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हुआ है, क्योंकि एक्चुअली एक फार्मर ने अपने खुद की खेती में ओपन फील्ड में गन्ना लगाकर इतना यील्ड शायद कहीं आया नहीं है, ऐसे सब साइंटिस्ट हमको बोलते हैं। तो हमको तो बहुत ही खुशी हुई। उसका जो लाभ आता है, रतून आता है, रतून का भी यील्ड बहुत अच्छा है। 123 टन उसका रतून का एवरेज मिला। सेकेंड ईयर हमने 2019-20 के लिए ट्राई किया था। अभी उसका 200 टन के लिए ट्राई किया। उसका अभी हार्वेस्टिंग ख़त्म हुआ, 148 टन निकला उसमें, ज़्यादा नहीं, कम हुआ। सेकेंड रतून नहीं, फर्स्ट रतून ही छोड़ दिया वो, तो फिर खाली करके और उसको कल्टीवेट वगैरह किया। दूसरा प्लॉट हमने तैयार किया था, उसमें 148 टन निकला। लास्ट टाइम महाराष्ट्र में हमारे बहुत ज़्यादा बारिश थी, इस साल भी बहुत ज़्यादा बारिश थी, उसके कारण से जितना ग्रो होना चाहिए उतना वो शायद नहीं हो सका। अभी तीसरा प्लॉट करने का जून जुलाई में फिर 200 टन के लिए चालू करना ही है, वो तो चलता ही है ऐसे। इसके पीछे एक हमने किया कि जो भी साइंटिस्ट लोग हमको बोलते हैं उसको फॉलो करना है, साइंटिफिक तरीके से गन्ने में काम करना है। ऐसे करते करते हमने काम करना शुरुआत किया। 100 टन से लेकर अभी 168 टन तक हम पहुँचे हैं। हमारा ग्रुप बहुत बड़ा हो गया है महाराष्ट्र में। ये व्हाट्सएप के माध्यम से तो बहुत जगह हम पहुँचते हैं, फेसबुक से भी बहुत जगह पहुँच रहे हैं। लोगों को ये सब कैसे हम कर रहे हैं ये बताते हैं। बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं और 10-20 टन ऐसे उत्पादन उनका बढ़ जाता है। 10-20 टन उत्पादन बढ़ गए तो भी वो खुश होते हैं। ऐसे करके चल रहा है। गुजरात में एवरेज बहुत कम है उधर का, गुजरात स्टेट का तो 22-23 टन एवरेज है उधर। 5 साल पहले मैं एक शुगर फैक्ट्री में उन्होंने इनवाइट किया था तो मैं गया था, DSTA के थ्रू ही गया था मैं। तब से वहाँ 5 साल एक शुगर फैक्ट्री में हूँ ही। उधर भी ऐसे फार्मर सिलेक्ट करके उनको हर महीने में मैं विज़िट करके गाइड करता हूँ, लास्ट टाइम क्या किया है, आगे जाकर अभी क्या करना है। ऐसे थोड़ा प्लॉट विज़िट करके उनको समझाता हूँ, ऐसे वो करते हैं।
तो उधर भी फर्स्ट टाइम जब मैंने ट्राई किया था तो 114 टन इतना गन्ना उधर मिला था। एक्चुअली उसका प्लांटेशन डेट है 17 सितंबर, क्योंकि उधर तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है, सी शोर नज़दीक है, तो सितंबर तक बारिश ही रहती है। 17 सितंबर को प्लांटेशन करके हार्वेस्टिंग नवंबर में हुआ था। इतने दिन में भी 114 टन उनको उत्पादन मिला था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के हाथों से मेरा सम्मान भी उधर हुआ था। वो एक फैक्ट्री देखकर फिर आहिस्ता करके दूसरी, तीसरी, चौथी फैक्ट्री करके 4 शुगर फैक्ट्रीज में मैं अभी जाता हूँ उधर। हर महीने में एक बार 2-3 दिन के लिए उधर विजिट होती है। एक्चुअली फार्मर पे फील्ड पे जाकर मैं देखकर उधर कंसल्ट करता हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि गणदेवी शुगर फैक्ट्री में भी मैं हूँ उधर, जो हाईएस्ट रेट देती है, आपको तो पता ही है। वैसे ऐसे उधर भी काम चल रहा है। महाराष्ट्र में 3 शुगर फैक्ट्री में जाते रहता हूँ। ये माई नेचर इंडिया करके इनकी ये है, मिस्टर सुरेंद्र जी है, उनका कुछ चैनल वगैरह बहुत अच्छा चलता है। उनको मेरा वहाँ का पता चला, तो मेरे लिए उधर मिलने के लिए उधर आए थे। उधर मिलकर उन्होंने शूटिंग भी किया और वो शायद फेसबुक और इसमें उन्होंने ब्रॉडकास्ट किया था। अच्छा। थोड़ा बहुत जैसे जितना भी मुझे कन्नड़ आता है उसमें उन्होंने करवाया था। इधर के लोगों ने शायद बहुत देखा, अरे 4-5-6 महीने से वो बुला रहे, इधर आइए देखना है आपको। मुझे भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, बीच में तो कोविड ही था, तो बाहर ही नहीं निकल पाता था। ये 2 महीने में ऐसे ट्राई कर रहे थे कि देखो कैसे होता है। 2 दिन से मैं इनके साथ हूँ। अब 1-2 प्लॉट वगैरह विजिट किया था। चलो ऐसे उन्होंने बोला चरण जी ने कि चलो मंड्या जाकर देखेंगे थोड़ा कैसा है। वो 517 उन्होंने मुझे कल गन्ने के बारे में बताया था, जो वैरायटी मुझे पता नहीं है, यहाँ बहुत अच्छी चलती है। ऐसे उन्होंने बोला कि चलो कहीं कैसे है वो देखेंगे तो सही है। अगर इधर कोई लगाना है तो उसके कैरेक्टर्स कैसे है, क्या है, ये थोड़ा सा समझ लेंगे करके उनको बोला था कि आज टाइम मिला तो मैं आता हूँ करके। लास्ट ईयर इस्कान 90 टन इस्कान होता सर, लास्ट इयर्स 90 टन 517 ನಾವು ಬಿಡ್ತೀವಿ 90 ಟನ್ ಒಂದು ಎಕರೆ. ಸೊ ಆ ಫೋಟೋಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಸೊ 100 to 110 ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು 517 ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ 517 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೋಗ್ತಾ ಅಂದರೆ ಸರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ 200 ಟನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ಮರ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮರ್ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು. थैंक यू वेरी मच। हम तो धन्य है। नहीं ऐसा नहीं है। आप यहाँ आए तो अगर मेरे को मालूम पड़ता तो सुबह से आपके साथ लगा रहता मैं। इतना इंटरेस्ट है क्योंकि हम जो भी करेंगे अल्टीमेटली फार्मर को फ़ायदा होगा। वो हम चाहते हैं वही है। जो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है उनको मालूम होना चाहिए। ये आप में ये खासियत है, जो भी साइंटिस्ट ने बताया वो अच्छी तरह इम्प्लीमेंट भी किया है आपने। राइट, बिल्कुल। कई जगह फार्मर्स ऐसे होते हैं, साइंटिस्ट कहता रहता है, ये साइंटिस्ट ऐसे ही कहता है यार वो मालूम नहीं है, हम जैसा करते आ रहे हैं वही ठीक है। ऐसे सोच के करने वाले भी बहुत ज़्यादा है, वैसे लोग ज़्यादा रहते हैं। सो कुछ फार्मर्स ऐसे जल्दी पकड़ नहीं पाते हैं साइंटिस्ट की बात। ये सब सोचने वाली बात है। आपने काफ़ी लीड लिया है, अच्छी तरह इस तरह अदर स्टेट्स में जाके चांस मिला मुझे वैसे जाने के लिए। 2010 में 2010 में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट बराक ओबामा जी भारत में आए थे। अच्छा। बम्बई में एक दिन के लिए विजिट थी उनकी, और दिल्ली में 1.5-2 दिन उधर रुकने वाले थे। बम्बई में जब उनकी विज़िट हुई उस टाइम पे सेंट जेवियर्स कॉलेज में उनका एक प्रोग्राम था 1 घंटे के लिए लड़कों विद्यार्थियों के साथ, और उन्होंने और एक आधा घंटा ज़्यादा उधर दिया था। महाराष्ट्र इंडियन एग्रीकल्चर कैसा है ये उनको देखना था। अच्छा। इंडिया और अमेरिका ये दोनों मिलाकर अफ्रीका में जो भूख बड़ी हो रही है, ज़्यादा ग्रेन उधर नहीं मिलता है, तो उनके लिए एक प्रोग्राम उस टाइम पे किया था।
USAID एंड CI ऐसे दो संस्था ने ये ऑर्गेनाइज किया था ये सब, यानी फूड सिक्योरिटी के बारे में ये सब काम चल रहा था उस टाइम। उनको ये वहाँ यहाँ की फैसिलिटीज़ कैसे है, कैसे फार्मर करते हैं, क्या क्या आप उनको प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज़ करते हैं, वो उनको देखने का था। एक छोटी प्रदर्शनी उधर ही कॉलेज में रखी थी गवर्नमेंट की तरफ से। उसमें जैन इरिगेशन सिस्टम्स के माध्यम से मुझे बुलाया गया था कि गन्ना बहुत अच्छा करते हैं, गन्ने के बारे में आप उनको बोलिए करके। अभी लिया है प्लेस। तो बराक ओबामा जी से 5-6 मिनट बातचीत करने का मुझे अवसर मिला। स्टॉल पे जब आए थे तो मुझे इंट्रोड्यूस किया गया कि ये गन्ना बहुत अच्छा करते हैं। 20 टन इनका पहले प्रोडक्शन था, अभी उस टाइम पे मेरा 121 टन उत्पादन मिला था मुझे, अभी 120 टन के ऊपर चले गए हैं। ऐसे करके इंट्रोड्यूस करके दिया था। तो काफ़ी 2-4 प्रश्न उन्होंने पूछे, ऐसे डिस्कशन होता रहा। 6-7 मिनट तक डिस्कशन हुआ। बहुत बड़ी उपलब्धि मुझे हुई, बहुत बड़ा अवार्ड ही था। मान लीजिए उनसे मिलना भी दूर भी होता है, इतना आसान नहीं है किसी को। तो जब जाते वक्त उन्होंने इनवाइट भी किया मुझे कि आप हो सके तो अमेरिका आ जाइए करके। ऐसे सोच कर और जाते जाते बोलते ऐसे बोल कर गए होते। लेकिन 2013 में उधर एक कॉन्फ्रेंस में मुझे इनवाइट किया गया, सक्सेसफुल फार्मर इन इंडिया ऐसे हेड देकर मुझे, आप खेती करते वक्त आपकी इकोनॉमिकल स्थिति के बदली, कितना सुधार आया, ये बोलने का था। इसके लिए उन्होंने इनवाइट किया था। बोस्टन सिटी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, उसमें ये कार्यक्रम हर साल होता है। मैं जब गया वो 27th ईयर था। डॉक्टर गोल्डबर्ग रे नाम के प्रोफेसर थे, वो ये सब ऑर्गेनाइज करते थे। उसमें शामिल होने का अवसर मिला और करीबन 25 मिनट्स वहाँ प्रेजेंटेशन करने का भी मुझे अवसर मिला। यानी मेरी स्थिति पहले कैसे थी, अब कौन सी स्थिति में मैं आ गया हूँ, ऐसे बोलने के लिए चांस मिल गया था। यानी ये गन्ने में काम करते करते इतने बड़े बड़े उपलब्धि भी मुझे हो गए। तो गन्ने के ऊपर मेरा बहुत ही क्या बोलते, प्रेम बहुत है उसके ऊपर। बाकी अवार्ड्स भी वगैरह ऐसे बहुत हैं, गवर्नमेंट के भी अवार्ड्स बहुत हैं। जो मैं करता हूँ, मेरी खेती जैसे अच्छी होती है, ये सब लोगों को सिखाने का काम मैं कर रहा हूँ। जो भी मुझे पता है वो बोलने का काम कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को उसका फ़ायदा भी मिल रहा है। हमने 2003 से डॉक्टर हब से जी, डॉक्टर DG सर, वो तो हमारे गुरु है। तो उनके साथ उनको बुलाया मैंने, क्योंकि हमारे जो फार्मर्स लोग उनको हेल्प करना चाह रहे थे हम। सो वाइड ग्रो प्लांटेशन से वो तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो उनसे कई ट्रेनिंग क्लासेस भी हमने कंडक्ट करवाए। ओके। तो तेलुगु में ट्रांसलेट करना पड़ता था, तो किसी न किसी को बगल में बैठ। हिंदी भी बिल्कुल नहीं चलता है। लेकिन उस कोशिश में जो हम लोग सफल हुए हैं। देयर वाज कुछ फार्मर्स ऐसे लीड लेके ये सब अडॉप्ट करना शुरू किए थे, उससे फ़ायदा भी मिला। लेकिन ये रीडिंग्स नहीं है 120 है, उनका जो एक हमेशा पानी रहता है, जो लैंड में पानी रहता है। सो अब ड्रिप में तो फ़ायदा यही है, यू कैन कंट्रोल एंड एवरीथिंग। तो हमने टिश्यू कल्चर लैब लगवाए और पॉलीट्रेराइज्ड सीडलिंग्स, एक 1.6 crores 160 लाख सीडलिंग्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे एक साल में। इतने सारे, बहुत ज़्यादा काम किया। केवल सीडलिंग का तो केवल 1 रुपये 15 पैसे इस इतने में ही देते थे। और कौन सी एरिया में काम किया था इसे? आंध्र प्रदेश में, नियर काकीनाडा। अच्छा, राजमंड्री है काकीनाडा एरिया। सो हम बाकी फैक्ट्री में जितना भी करेंगे तो उसका लिमिट है, लेकिन फील्ड लेवल में करेंगे तो देन स्काई इज द लिमिट। हैप्पीनेस जो है काफ़ी मल्टीप्लाई। राइट।
सो बहुत लिमिट हो जाता है, शुगर क्वालिटी इतना निकालो, हाँ, बस इतना ही हो गया। इतना Waste मत जाने दो। इतना इथेनॉल बनाओ, वेस्ट कम करो, बस खत्म। सो हियर एवरी डे एवरी ईयर टारगेट्स, जैसा आप 20 से 120 168 लिमिट, वो जो टारगेट्स और अचीवमेंट्स जो भी है, तो रियल देर आर मैनी अनसंग हीरोज। आप तो फिर भी सबको मालूम पड़ गया आपके बारे में, बट कई लोगों के बारे में तो मालूम ही नहीं पड़ता, साइलेंटली काम करते रहते हैं। सो मैंने यही कहा, मैं पिछले मैं प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में, फार्मर लोग कभी चिढ़ जाते हैं, कुछ एक आध बात उल्टा सीधा कर बोलते हैं, तो डोंट फील बैड। जैसे आप लोगों को ऐसे तनख्वाह मिल जाती है, हम सबको हर महीने में तनख्वाह मिल जाती है, और लाइफ इज़ मच मोर कंफर्टेबल। फार्मर्स को तो हर चीज़ मुश्किल है उन लोगों के लिए, लेबर मिलना और मैनी थिंग्स, बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। तो समझने की कोशिश करिए, उनकी बुराई के बारे में बात मत करिए, जो भला काम अच्छा काम कर रहे हैं उनके बारे में बात करना शुरू करिए। दैट्स व्हाट आई सेड। तब से लेके काफ़ी एक हमने एग्रीकल्चर फ्रंट में काफ़ी काम किया है। अरे बहुत बढ़िया। So, हर काम में तो यही है, अल्टीमेट एम फार्मर खुश रहे, दैट वाज द थिंग। बट अल्टीमेटली ऐसा हुआ है, जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा पानी दे शुरू किया। सो हम जितना काम करते थे वो सब पानी में बह जाता है, बिल्कुल पानी में बह जाता था। बिल्कुल। दैट वाज द सैड पार्ट। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए एक्चुअली। हमने मिनिस्टर लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सबको बताया, सीरियसली बताया, ये आप कंट्रोल नहीं करोगे तो देन सब नाश हो जाएगा, ये अननेसेसरली यू आर वेस्टिंग वाटर। लिफ्ट इरिगेशन से उठा के प्रोजेक्ट में भर के देन ड्रेनिंग टू द सी, कुछ नहीं, समुद्र में मिल जाता है, और उसके साथ साथ सॉइल की फर्टिलिटी बिगड़ जा रही थी, सब वॉश होके सब निकल जाता है। और they are IAS and they